1 year Bible reading plan मैथ्यू 27 चैप्टर 27 वर्स से लेकर 44 वर्स तक और एक्सोडस 40 चैप्टर। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 वचन से 44 वचन तक और निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और जब हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 27 से लेकर Then the soldiers of the governor took Jesus into the common hall and gathered unto him the whole band of soldiers. And they stripped him and put on him a scarlet robe. And when they had plaited a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand, and they bowed the knee before him, and mocked him, saying, Hail, King of the Jews! And they spit upon him, and took the reed and smote him on the head. And after that they had mocked him, they took the robe off from him, and put his own raiment on him, and led him away to crucify him. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull, they gave him vinegar to drink mingled with gall. And when he had tasted thereof, he would not drink. And they crucified him, and parted his garments, casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. And sitting down they watched him there, and set up over his head his accusation, written, This is Jesus, the King of the Jews. Then were there two thieves crucified with him, one on the right hand and another on the left. And they that passed by reviled him, wagging their heads, and saying, Thou had destroyest the temple, and buildest it in 3 days. Save thyself. If thou be the Son of God, come down from the cross. Likewise also the chief priests, mocking him with the scribes and elders, said, He saved others, himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God, let him deliver. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God, let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God. The thieves also which were crucified with him cast the same in his teeth. 44 वर्ष तक ही पढ़ना था, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल से। 27 अध्याय 27 वचन से लेकर 44 वचन तक पढ़ना है। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। 27 वचन से, तब हकीम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की
और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और उस पर चढ़ाने के लिए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। 32 वचन से आगे। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उससे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। एक्सोडस 40 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे पहले वचन से। फर्स्ट वर्स, इंट्रोडक्शन। द टैबरनेकल इज कमांडेड टू बी reared and anointed, Aaron and his sons to be sanctified. A cloud covereth the tabernacle. And the Lord spake unto Moses, saying, On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation, and thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the veil. And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it. And thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof. And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle. And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation. And thou shalt set the layer between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein. And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate. And thou shalt take the anointing oil and anoint the tabernacle and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof, and it shall be holy. And thou shalt anoint the altar of the burnt offering, and all his vessels, and sanctify the altar, and it shall be an altar most holy.
And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it. And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water. And thou shalt put upon Aaron on the holy garments, and anoint him, and sanctify him, that he may minister unto me in the priest's office. And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats, and thou shalt anoint them as thou didst anoint their father, that they may minister unto me in the priest's office. For their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations. Thus did Moses according to all that the Lord commanded him, so did he. And it came to pass in the first month, in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up. And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up his pillars. And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it, as the Lord commanded Moses. And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark. And he brought the ark into the tabernacle, and set up the veil of the covering, and covered the ark of the testimony, as the Lord commanded Moses. And he put the table in the tent of the congregation upon the side of the tabernacle northward without the veil. And he set the bread in order upon it before the Lord, as the Lord had commanded Moses. And he put the candlestick in the tent of the congregation over against the table on the side of the tabernacle southward. And he lighted the lamps before the Lord, as the Lord commanded Moses. And he put the golden altar in the tent of the congregation before the veil. And he burnt sweet incense thereon, as the Lord commanded Moses. And he set up the hanging at the door of the tabernacle, and he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the meat offering, as the Lord commanded Moses. And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there to wash withal. And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat, when they went into the tent of the congregation. And when they came near unto the altar, they washed as the Lord commanded Moses. And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys. But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up. For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys. निर्गमन 40 अध्याय। निवास स्थान खड़ा किया जाना और उसकी प्रतिष्ठा। पहले वचन से, फिर यहोवा मूसा से कहा,
यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रख कर बीच वाले पर्दे को की ओट में कर देना और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना और चारों ओर के आंगन की कनात को कनात को खड़ा करना और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाये समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना और जैसे तो उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। इस प्रकार मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया और दूसरे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने निवास को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियाँ धर उसके तख्ते लगा के उसमें बेंट डाले और उसके खम्भों को खड़ा किया और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया और बीच वाले पर्दे को लटका के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास के उत्तर की ओर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगाया और उस पर उसने यहोवा के सम्मुख रोटी सजा कर रखी जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास के दक्षिण की ओर दीवट को रखा और उसने दीपकों को यहोवा के सम्मुख जला दिया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में या वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। मिलाप वाले तंबू का पर बादल 34 वचन से आगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया
इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कुछ करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 13 चैप्टर 44 वर्स से 52 वर्स तक और जेनेसिस 42 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 44 वचन से 52 वचन तक और उत्पत्ति का 42 अध्याय। जब ये 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को हमने देखा कि कौन से वचन और अध्याय हैं, ये हमने अपने व्यक्तिगत समय में, हम अपने अकेले समय में इसे पढ़कर इसके अंदर के वचन से परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है, किस प्रकार से सिखाना चाहता है, इसके नोट्स बनाकर उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हुए हम आगे बढ़ते जाना है। ये हमारे एक व्यक्ति को, हमारा जो पर्सन है, व्यक्ति जो हम है, उसमें वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। परमेश्वर के काम आ सकेंगे। इस प्रकार का हम बनकर ये 2 साल के एंडिंग में, बाइबल स्टडी के एंडिंग में, हम अपने आप को परमेश्वर के लिए एक तैयार ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु यीशु हमें ऐसा होने के लिए अनुग्रह दे कि हम ये पूरा कर सके इस प्रकार से, जैसे अकेले में बैठकर ये वचनों को अभ्यास करते हुए, मनन करते हुए पढ़ने के लिए कहा है। हमने इसे इस प्रकार से लिया है, ये 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान को अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ने के लिए लिया है। और प्रभु यीशु हमारी इसके विषय में सहायता करे। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।